Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, what makes up the human body. Human body is a complex and wonderful machine which is far advanced than any of the man-made modern machines. It performs various functions at the same time. Like a machine, our body is also made up of many parts like brain, heart, lungs, etc. Each part performs its own special function. These parts are called organs. Organs combine to make a system for a series of systematic functions. The organ systems of the body work together with each other's help. ह्यूमन बॉडी एक वंडरफुल मशीन है, साथ ही साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है. ये बहुत सारे फंक्शंस करती है परफॉर्म सेम टाइम पे. जैसे मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है और इन पार्ट्स को कहा जाता है ऑर्गन्स. फिर ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड फिर जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी का वो साथ में वर्क करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है. तो सबसे पहले आपका जो सिस्टम है दैट इज द स्केलेटल सिस्टम. The framework of bones in our body is called skeleton or skeletal system. It supports the body and protects delicate organs like brain, heart, and main sense organs. It gives the body its shape and strength. Bony framework has been formed in such a way that we are able to sit, stand, bend, walk, run, and do so many functions with hands and legs. जो बोन्स का फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी में उसे स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन भी कहा जाता है. ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है. द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 bones. Some bones are large while others are small. Bones are made of living cells. That is why they grow as one gets older. The bones are hard with holes and hollows in them for nerves and blood vessels. The long bones are filled with a soft material called bone marrow. Both red and white blood cells are made inside the bone marrow. The red blood cells carry oxygen to every part of the body and white blood cells fight disease-causing germs. देखिए ह्यूमन स्केलेटन में टोटल आपकी होती है 206 बोन्स. कुछ बोन्स आपकी लंबी होती हैं, कुछ आपकी छोटी होती हैं. बोन्स आपकी लिविंग सेल्स हैं. तो इसीलिए जैसे जैसे हम ये ग्रो करते हैं एज वन गेट्स ओल्डर. बोन्स आपकी हार्ड होती है जिसमें आपके होल्स होते हैं, हॉलोज होते हैं, ओके मतलब नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स के लिए. तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो एक सॉफ्ट मटेरियल से फिल्ड होती है जिसे कहा जाता है बोन मैरो. बोथ आपके जो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपके बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं. पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. They are joined together very lightly so they cannot move apart. It protects the brain. 14 bones support the face. जो आपका स्कल है वो 8 फ्लैट बोन से बना है. ये साथ में जॉइंट होते हैं वेरी लाइटली बट मूव नहीं कर पाते, राइट. ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं एंड 14 बोन्स जो हैं हमारे फेस को सपोर्ट करते हैं. द जॉज. Man and some animals have 2 jaws. The upper jaw is a part of the skull and hence immovable, but lower jaw can be moved up and down. This movement helps in chewing the food. We also move it while talking. Men और कुछ एनिमल्स के 2 जॉज होते हैं. अपर जॉ जो है वो स्कल का पार्ट होता है, इसीलिए इमूवेबल होता है. बट जो लोअर जॉ होता है उसको हम अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और यही जो मूवमेंट है खाने को च्यू करने में हेल्प करता है. The backbone or spine. The backbone in a human is made up of 33 small bones. They are called vertebrae. These vertebrae are linked together and form the main axis of the body. Vertebrae protect the spinal cord that runs from the brain to the last vertebra. अब जो बैकबोन है ह्यूमन में वो आपकी 33 स्मॉल बोन से बना है जिसे वर्टिब्रे कहा जाता है. ये वर्टिब्रे जो है वो साथ में लिंक्ड होते हैं और एक बॉडी का मेन एक्सेस बनाते हैं. वर्टिब्रा जो है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि आपके ब्रेन से रन करता है टू द लास्ट वर्टिब्रा. द रिब्स. यू कैन फील योर रिब्स इन योर चेस्ट. There are 12 pairs of ribs in a human being. They form a cage-like structure and protect the delicate organs like the heart and lungs. Ribs bones are curved so as to join the backbone and the breastbone. The last 2 are joined the backbone only. देखिए रिब्स हमारी आप फील कर सकते हैं हमारे चेस्ट में. ये 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के. ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट एंड लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करते हैं. ये आपके रिब बोन जो है कर्व्ड होती हैं सो एज टू जॉइन द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन. द लिम्स.
There are two pairs of limbs in a human being. Hands are called forelimbs and the legs as hind limbs. Two large bones join together to form a hand. Similarly, two bones join to form a leg. Many small bones join together to make up wrist, palm and fingers. The bones of the limbs are attached to the girdles. The upper arm bone is attached to the shoulder girdle. The thigh bone is attached to the hip girdle. The longest bone in the body is femur or thigh bone. देखिए दो पेयर्स ऑफ लिम्स है ह्यूमन बीइंग में. हैंड्स आपके फोर लिम्स हैं एंड आपके लेग्स हिंड लिम्स होते हैं. दो लार्ज बोन्स जॉइन होके बनाती हैं आपके हैंड. इसी तरह से दो बोन्स मिलके बनाते हैं लेग. बहुत सारे स्मॉल बोन्स जो होते हैं आपके वो जॉइन होके बनाते हैं आपके रेस्ट, पाम और फिंगर्स. आपकी जो बोन्स होती है लिम्स की वो गर्डल्स के साथ अटैच होती है. अपर आर्म बोन जो है वो शोल्डर गर्डल के साथ अटैच होती है. जो थाई बोन होती है वो हिप गर्डल के साथ. आपको बताऊँ मैं, लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में है फीमर, या इसे थाई बोन भी कहा जाता है. द फीट. द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द फीट. द बोन्स ऑफ द फीट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क. An arc can support maximum weight. There are three kinds of arches in each foot. At the base of heel, the base of big toe and the base of each small toe. अच्छा, हमारी बॉडी का जो वेट है उसको कौन सपोर्ट करता है? फीट. और फीट जो आपके अरेंज्ड होते हैं, फीट में जो बोन्स होती हैं आपकी इस तरह से एक आर्क की फॉर्म में होते हैं, राइट? और ये भी आपके थ्री टाइप के होते हैं. ये आपके होते हैं एक तो बेस ऑफ द हील, बेस ऑफ द बिग टो एंड द बेस ऑफ स्मॉल टो. Joints. A place where a bone is joined with another bone is called a joint. Different bones in our body are connected to one another by different kinds of joints. Bones joined with one another are bound by a thick cord of a strong elastic tissues called ligaments. The bones do not move at the joints of the skull. It is an immovable joint. The bones at the joints move except the skull. Movable joints are of four types. अच्छा, जॉइंट आपका एक प्लेस होता है जहाँ पे आपकी एक बोन दूसरी बोन के साथ आपकी जॉइंट होती है. तो हमारी बॉडी में ना जो बोन्स होती हैं, डिफरेंट बोन्स हमारी बॉडी की, वो कनेक्टेड होती है डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स के साथ. बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होती हैं और जो वो जॉइन होती हैं तो वो आपकी बाउंड होती है थिक कॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू जिसे कहा जाता है लिगामेंट्स. तो जो बोन्स होती है जॉइंट्स पे, जैसे स्कल में आपके हैं, वो मूव नहीं करती है. ये इमूवेबल जॉइंट है. तो जो बोन्स आपकी जॉइंट्स हैं वो मूव करती हैं एक्सेप्ट जो आपके स्कल में है. अब मूवेबल जॉइंट्स के भी टाइप्स है. नंबर 1 है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट वर्क लाइक अ हिंज इन द डोर. एट दिस जॉइंट बोन्स कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. जॉइंट्स एट एल्बो, नी, टो एंड फिंगर आर हिंज जॉइंट्स. हिंज जॉइंट आपका हिंज की तरह काम करता है जो आपके डोर में होता है. तो इस जॉइंट पे जो बोन्स है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो ये देखिए जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो जॉइंट्स हैं आपके हिंज जॉइंट्स हैं. नंबर 2, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Ball of a bone moves into the socket of the other bone. This joint is found in our hips and shoulders. It allows to swing our arms almost like a wheel in all directions. बॉल होती है जो बोन की, वो मूव करती है सॉकेट ऑफ द अदर बोन. तो ये आपके हिप्स एंड शोल्डर्स में पाई जाती है. तो इसकी वजह से आपने जो आर्म्स हैं हम इनको एक व्हील की तरह मूव करा पाते हैं, स्विंग करा पाते हैं ना. नंबर 3, पिवट जॉइंट. This joint is found between the skull and the first two vertebrae of the backbone. It allows the skull to move from side to side and up and down. ये जो जॉइंट है आपका, ये स्कल और पहले दो जो वर्टिब्रे हैं बैकबोन के उसके बीच में पाया जाता है. इसकी वजह से जो स्कल है वो मूव करता है साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन. नंबर 4, ग्लाइडिंग जॉइंट. These joints are found in the wrist and ankle. Vertebrae are also joined together by gliding joints. In this joint, one bone glides on the another in it. It allows only a little movement but in all the directions. It allows our back to bend, twist and turn at each joint of our backbone. ये जो joints हैं ना आपके wrist and ankle में पाई जाती है. Vertebrae जो है ये आपके joint होते हैं by gliding joint. और इस joint में एक bone जो है वो glide होती है दूसरे पे. तो इससे क्या होता है कि लिटिल मूवमेंट होता है बट हर डायरेक्शन में होता है. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मेरे बैक को हम बेंड कर पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं एंड टर्न कर पाते हैं. द मस्कुलर सिस्टम. There are around 650 muscles in the human body.
All flesh is made up of muscles. Muscles are made of bundles of fibers. All the muscles together form the muscular system. Some of the muscles are attached to different bones by strong fibers called tendons. Skeletal system and muscular system closely work together. No function in the body can take place without muscles. हमारी बॉडी में अराउंड the muscles हैं. हमारा जितना जो फ्लैश है वो आपका मसल से बना है. मसल्स आपके बंडल्स ऑफ फाइबर से बने एंड पूरे जो मसल्स हैं टुगेदर दे मेक मस्कुलर सिस्टम. कुछ आपकी मसल्स जो हैं डिफरेंट बोन्स से अटैच होती हैं एक स्ट्रॉन्ग फाइबर से जिसे कहा जाता है. तो स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम साथ में काम करते हैं. टाइप्स ऑफ मसल्स. Muscles are usually of three types. Number one, striped or skeletal muscles are attached to some part of the skeleton. They are known as voluntary muscles as we have some control over them. We can move them at our will. Muscles of fingers, arms and legs are voluntary muscles. We use them to throw a ball, lift a book or walk up a hill. आपकी जो मसल्स होती है ना ये आपके स्केलेटन के कुछ पार्ट के साथ अटैच्ड होती है ना वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. इनके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है. हम इनको अपनी मर्जी से इनको मूव करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मसल्स हैं इनकी ये सारी वॉलंटरी मसल्स हैं. नंबर टू, स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स हैंडल द वर्क ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट द हार्ट. We do not have any direct control over the actions. We cannot move them at our will. For example, movements of the stomach, intestine, kidney and urinary bladder. अब आपकी जो इनवॉलंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स होती हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स को का जो वर्क है उसे हैंडल करती हैं एक्सेप्ट हार्ट. अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं. जैसे कि आपका मूवमेंट हो गया इन सभी ऑर्गन्स का. नंबर थ्री, कार्डियक मसल्स. Muscles of the heart are also involuntary, though their structure is like voluntary muscles only. They keep on working independently and non-stop throughout our life. अब जो कार्डिक मसल्स हैं यानी जो हार्ट की मसल्स हैं ये भी आपकी इनवॉलंटरी होती है. हालांकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो वॉलंटरी मसल्स जैसा होता है तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है थ्रू आउट आवर लाइफ. हाउ डू मसल्स वर्क? All muscles work by contracting and relaxing. When a muscle contracts, it shortens and draws the bones closer. When it relaxes, it comes back to its original shape. Muscles work in pairs. Each movable joint has two sets of muscles, one to pull the bones up and the other to pull the bones back. For example, when you bend the arms at the elbow, the bicep muscles at the top of your arm shorten. At the same time, the tricep muscles on the lower part of your arm lengthen. When you make your arm straight, the biceps lengthen and the triceps shorten. जितने भी मसल्स हैं वो काम कैसे करती हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये शॉर्टन हो जाती है एंड देन इट ड्रॉज द बोन क्लोजर. और जब ये रिलैक्स होती है फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. तो मसल्स जो है हमेशा ना पेयर्स में वर्क करते हैं. हर मूवेबल जॉइंट के दो सेट्स ऑफ मसल्स होते हैं. एक का काम होता है बोन को पुल अप करना, दूसरे का काम होता है बोन्स को बैक पुल करना. जैसे कि आप बेंड करते हैं अपने आर्म्स को एल्बो पे तो जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं यानी कि हमारे जो आर्म के टॉप पे होती हैं वो शॉर्टन हो जाती हैं. सेम टाइम पे जो ट्राइसेप मसल्स होती हैं यानी आर्म के जो लोअर पार्ट पे होती हैं वो लेंथन हो जाती हैं. और जब आप अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं तो जो बाइसेप्स लेंथन हो जाती है एंड ट्राइसेप फिर शॉर्ट हो जाती है. Some muscles do not move the bones. We use 14 muscles of our face just to smile. We open and close our eyelids with the help of muscles. We can form many expressions of the face with their help. कुछ मसल्स जो होती हैं वो बोन्स को मूव नहीं कराती और जब हम स्माइल करते हैं ना तो 14 मसल्स का हम यूज़ करते हैं. हम अपनी आईलिड्स को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स. केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. Bones and muscles perform very important functions, so we should take proper care to keep them strong and healthy. Muscles grow and develop by adequate exercise. Swimming, walking, running, jumping, cycling and games are good exercises. Bending and stretching of the body in yoga and PT are also forms of exercises. देखिए बोन्स एंड मसल्स जो है ना हमारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए हमें इनका प्रॉपर केयर करना चाहिए जिससे कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहे. तो सबसे अच्छा तरीका है टू एक्सरसाइज. जैसे बहुत तरह के आपके एक्सरसाइज के फॉर्म्स हैं जैसे स्विमिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, राइट. या जैसे आप बेंडिंग या स्ट्रेचिंग करते हैं योगा में, पीटी में, ये भी सारे आपके फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हैं. Maintaining correct posture is also necessary. Sit straight, stand straight and walk straight.
Correct posture helps the bones grow correctly and support the body well. Balanced food helps the bones and muscles to grow well. Consumption of tobacco, alcohol or any other harmful habit forming drugs damage the bones and muscles. देखिए करेक्ट पॉस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. आपको हमेशा सीधे खड़े होना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, वॉक भी स्ट्रेट करना चाहिए. करेक्ट पॉस्चर से क्या होता है कि बोन्स आपकी करेक्टली ग्रो करती हैं एंड बॉडी को सपोर्ट करती हैं. बैलेंस फूड बोन्स एंड मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. अगर टबैको का कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन या कोई भी हार्मफुल हैबिट को हम यूज़ करते हैं तो उससे बोन्स एंड मसल्स आपकी डैमेज होती हैं. Forget me not. The skeleton forms the framework of our body. Bones protect our delicate organs. Bones fit together at the joints to be able to move. Muscles help the bones to move. Muscles are of three kinds: voluntary, involuntary, and cardiac. Contraction and relaxation of muscles bring about all movements of body organs. Balanced food and proper exercises keep the bones and muscles strong. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.